की खोज में निकल तो किस लिए हताश है? We are talking about this rape case because it got highlighted. The point is, it is not about education, it is not about power and empowerment. रूह कांपेगी इनकी बेटियों को देखने तक से। कोई आंखों से पर्दा हटाओ तो सही। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अच्छी बात है, पर बेटियों को पहले कोई बचाओ तो सही। तो है गाइस, अभी जानते हो कि कोलकाता में जो अभी रेप केस हुआ था उसका अभी भी इंसाफ नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। काफ़ी अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर जगह से अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और इसी को लेकर आज हम लोग भी अपने एनजीओ की तरफ से एक अवेयरनेस फैलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को गाइस अंत तक देखना। ये वीडियो मेरे कोई फ़ायदा का नहीं होने वाला है, तो गाइस ये वीडियो को अंत तक देखना। अभी हम लोग निकल रहे हैं और देखो आज हमने क्या ऑर्गेनाइज़ किया है। और गाइस जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक अवेयरनेस फैलाना रेप के ख़िलाफ़ बंद ना करो, मैं बोलूँगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि गाइस पब्लिक में ही असली पावर होता है। हमारे मेंबरों ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक कुछ तैयार किया है, तो आप लोग बस देखो। और गाइस ये वीडियो किसी का भी प्रमोशन नहीं, किसी का भी फ़ायदा नहीं, सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए होगा, तो बस देखो। तो गाइस एक स्किट तैयार किया गया है। स्किट है ना तुम लोग का? चलो ठीक है, देखना कितना अच्छा इन लोग किया है तैयार। Our brothers to wake up and understand if you are doing it having your conscience, your consciousness, having your thought process, इतना कुछ ज्ञान शिक्षा, इतना कुछ डिफरेंट होने के बावजूद एनिमल्स से, एनिमल्स भी they don't rape you, you know, they also don't rape. Go and watch Animal Planet. Convey my condolences to the family who are suffering and pray that the departed soul rests in peace and she gets justice. That's all we can expect from this. The system doesn't seem to cooperate, but we can raise our voice, and as a civilized society we have been continuously raising our voices. That is why we are here. That is why we are here and gathered, and we are doing this agitation. This is kind of agitation, isn't it? So keep this spirit on, and every time a girl is overpowered by any means, raise your voice. Be it anyone's sister, anyone's mother, any girl. Time to speak up, time to stand by your sisters. I'd like to call Shreya ma'am. Please come on. क्योंकि जो भी होता है वो उसके बाद होता है। You know, people they like what we are doing today, but what was at that moment. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि it should be made compulsory कि हर लड़की, हर औरत को self defense के बारे में सोचना चाहिए। Government should first of all, literacy of course is very much important, but it should be made compulsory कि each and every girl, each and every female should be trained कि उस समय आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपके आसपास कोई नहीं होता है आपको बचाने के लिए। एंड वी शुड रियली वर्क ऑन दिस, ऑल द गर्ल्स, ऑल द फीमेल्स, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। Now let me share a fact with you all, which means 86 on a daily average. There are numerous cases which are not yet either reported or would have been suppressed by any of the means. We are talking about this rape case because it got highlighted. The point is,
it is not about education, it is not about power and empowerment. How will the empowerment and the self-defense work if a girl will get surrounded by 20 men, which happened in this case? I don't know whether you know this or not, but an average male can produce around 10 to 15 gram of semen at a time. But the amount of semen which was found in her body was more than 150 gram. So, if we talk about self-defense, कैसे वो कर पाती है अपना बचाव जब 15 से 20 लड़के उसके सामने खड़े हैं? This is a problem, as ma'am told that this is not a problem, it's a disease, it's a mental state of mind, जिसमें I don't know कि पर्सन किस लेवल तक क्या सोच सकता है. मतलब ये बताना भी नहीं, मतलब मुस्लिमों को बताने में ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्रीज लेग अपार्ट, ये कोई कॉमन जिसके पास हल्का सा भी पढ़ा लिखा सेंस होगा वो क्यों करेगा? बट इट्स अ डिजीज इन आवर ओन माइंड, इन आवर ओन प्रोसेस और थॉट ऑफ प्रोसेस. इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय फैमिली, I come from a nuclear family where we are 2 brothers, पापा एंड मम्मी. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर 9 बजे टाइम है घर में आने का, इवन इफ आई एम डूइंग जॉब, इवन इफ आई एम बिजी समवेयर या कहीं भी, हमको आज भी रिपोर्ट करना पड़ता है दैट हाँ हम यहाँ हैं या हम 9 बजे आ जाएंगे. जो रूल है वो मेरे लिए भी सेम है, और वो मेरे फैमिली में अगर मेरी कोई बहन, जो समझो कि अगर पापा, हमारे फैमिली में तो बहन नहीं है, बट अगर इफ आई टॉक अबाउट माय कजन, सबके लिए रूल सेम है. इनफैक्ट इन माय फैमिली आज ये बताने में काफ़ी प्राउड हो रहा है कि सारा चीज़ जो डिस्कशन होता है या कुछ भी फाइनलाइज होता है, वो जब तक मम्मी का ग्रीन टिक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा. और अगर बताया जाए माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, ऐसा नहीं है कि she is some government official या वो. It's all about how my upbringing is, how my father's upbringing is, और how my younger brother's upbringing is. ये सब कुछ वहीं से रूट प्रॉब्लम है हमारा कि how we are, मतलब कैसे हम लोग को पाला जा रहा है या कैसा हमें संस्कार शुरू में दिया जा रहा है. जो किए हैं वो लोग बताया जा रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि वही लोग हैं, बट द नाम्स जो आ रहे हैं, कोई मिनिस्टर का बेटा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा या कहीं से डिग्री उसके पास नहीं होगा. डिग्री अगर जस्टिफिकेशन दे पाता, या उसको पता नहीं था मौमिता को कि जो उस दिन हॉस्पिटल में उसके साथ होने वाला है, वो उस दिन अगर उसको पता तो वो जाती ही नहीं, बट वो 36 घंटा काम करके भी अगर वहाँ थी, उसको पता नहीं होगा कि ये उसके साथ होगा. तो ये सारा चीज़ जो है मेरे हिसाब से तो इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग. अगर इन 24 साल हो कि अगर मेरे अंदर डर है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको 9 बजे घर पहुंचना है या बताना है, तो वो 40 साल में भी रहेगा कि हाँ मम्मी हम यहाँ है या बाहर है. पहले जानवर था, आज खबर पढ़ता हूँ तो समझ आता, इंसान आज भी जानवर है. ये दाग जो लहू के आंचल पर पड़े थे, इस ढेर में बेजान से अरमान पड़े थे. वो हूबहू इंसान तो थे पर इंसान न थे, हवस की ख्वाहिश धर हैवान खड़े. कहता है महफूज रहे वो घर में बंद दीवारों में, बता द्रौपदी कहाँ लुटी थी, घर में की बाजारों में. सुरक्षा का दावा कर फिर एक वादा तोड़ दिया, अपनी हवस की आग में फिर इंसानियत को पीछे छोड़ दिया. रोज़ नए कानून निकलते हैं, कोई इसके लिए भी नियम बनाओ तो सही. वैसे हर गली में यहाँ एक नेता है, कोई इसके लिए भी आगे आओ तो सही. रूह कांपेगी इनकी बेटियों को देखने तक से, कोई आंखों से पर्दा हटाओ तो सही. और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अच्छी बात है, पर बेटियों को पहले कोई बचाओ तो सही. This just reminds me कि ये सारे जो incidents हैं, they are so frequent, and something like that happened during that time when I was वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः.
balancing work and family responsibility. The fear of violence or harassment, whether at home or in public, can cast a long shadow over her life. She dreams of a world where she can walk free and safely, where her voice is heard and respected. Family pressure for marriage can be overwhelming for a woman. This emotional burden often leads to stress and self-doubt as she tries to balance her. अंकल ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी और उन्होंने वो किया जिसे सोच के आपकी रूह कांप उठेगी। आइए देखते हैं। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? मम्मा कहाँ हो आप? अंकल, आपने मम्मा को देखा है? बेटा वो तुम्हारे पापा से बाहर है कुछ काम से। चलो ना मेरे घर में गेट है। आप चॉकलेट पियोगे? While the child was around with her uncle, he seized the opportunity to abuse her. He forced her into his room with false promises. कैब और ऑटो वाला ने ये वाला कुछ ज़्यादा ये वाला बहुत। रिचा परेशान थी क्योंकि वो इंसान एड्रेस की जगह कहीं और ही जा रहा था। रिचा कुछ देर थोड़ी घबराई और उसने पूछा, ये कौन सी रूट है? शॉर्टकट है बेबी। एक्सक्यूज मी भैया, तमीज से बात करिए। रुक तुझे बताता हूँ, रुक। रिचा चिल्लाई मगर उसकी आवाज उस अंधेरे पार्किंग के बाहर कहीं सुनाई नहीं। She was murdered brutally and her body was burned alive. ये बेड़ियां बिखार के बना लेंगे शस्त्र, बना लेंगे शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चले जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आग की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की
उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युनाशं मामृता कये पर खुद से लेकर जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। It was just a 2-hour practice. Your performance was outstanding. I was really worried. तो मैम उसमें 2 लोग आ रहे हैं नहीं तो स्पेशल थैंक्स टू भावना मैम, उन्होंने अटेंडेंस दी थी लेकिन इससे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि 2 लोग प्रेजेंट थे। A special mention to all the women here tonight. Your presence underscores the pride and strength we have for women everywhere. This event was more than a candle march or a rally. It was a heartfelt effort to make the women around us feel safe and cherished. I am thrilled that everything was executed to perfection. The skit team, I would really thank Aditi Palak, Vivek, Ashmeet Bagga. He was a great anchor. But the skit team, I would say, उम्मीदें नहीं थी उतनी, but you guys did very well and I promise आज भले ही 2 घंटे की प्रैक्टिस थी but I direct something for you guys जिसको आप लोग अश्मित, a special thanks to अश्मित personally शायद नहीं but professionally I will thank him. He was a great actor in this event and I'll make sure कि वो मेरे सारे events में रहे. And of course Mayank Bhaiya has always been a pillar for our NGO and our Rotaract Club. आपके लिए बोलना I don't think कोई बोल सकता है कितना आप काम करते हैं. Thank you for being a part of this event. जो भी आए हैं, Amity के बहुत स्टूडेंट्स आए हैं. I would thank everyone to ये ज़रूरी था करना. हम लोग का ये प्लान था कि शायद हम लोग उस लेवल तक लोगों को उनका माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते हैं. गवर्नमेंट इतने सालों से ट्राई कर रही है बट केसेस बढ़ रहे हैं. एक्चुअली केसेस बढ़ रहे हैं. उस केस के बाद हर दिन एक नया केस आ रहा है जो हाईलाइट हो रहा है. बट हमारा यही प्लान था कि जो वुमेन हमारे अराउंड है वो सेफ फील करे. और हमारे ग्रुप में आई वुड से आवर बोर्ड मेंबर्स आर 80% फीमेल एंड 20% मेन. और ये रोटरैक्ट क्लब ऑफ ज़ीनिया का जो है वो हमेशा रहेगा. वील ऑलवेज प्रेफर women over men in this club. और of course thank you to everyone present here and we wish you all the best. तो गैस घर तो आ चुके हैं. आज कितना सुंदर एक्ट किया हम लोगों ने. काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड पता नहीं हुआ या नहीं, आवाज़ आया नहीं, लेकिन काफ़ी सुंदर एक्ट, स्पीच, पोएम, सॉन्ग जो भी जितना भी उन लोगों ने किया भाई काफ़ी बेहतरीन किया. तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं. और ये बात जान लो कि इंसाफ सरकार के भी तरफ से ना मिले फिर भी आवाज़ उठाते रहना, क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है इस चीज़ के खिलाफ. जब तक कुछ समाधान अच्छा न निकाला जाए सरकार की तरफ से तब तक आवाज़ उठाते रहना किसी न किसी तरह से कैसे भी. चलो बाय बाय.